So my name is Dr. Ramesh. I am from Shahid Sukhdev College of Business Studies. So I am in this ecosystem, particularly in entrepreneurship education and entrepreneurship development for past 6-7 odd years. मैंने पिछली बार भी कहानी सुनाई थी, थोड़ा सा क्विकली रिपीट कर देता हूँ. 2015 से पहले मैंने entrepreneurship को फॉर्मली पढ़ा भी नहीं था, और 2015 में I have started teaching this paper and I was teaching like other papers. मुझे ऐसा लग रहा था कि entrepreneurship is, it is, yes please come, entrepreneurship is just like another paper, right? ठीक है. उससे पहले मैं अकाउंटिंग पढ़ाता था, तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, इसको भी वैसे ही पढ़ा देंगे. बट later, luckily within that same semester I realized that this is not the same story. Entrepreneurship should not be taught like subject. It is different. Why it is different? Because we are not, see, I am not expecting and I am not here to teach you what is entrepreneurship, what is the definition and all. No, I want you to practice entrepreneurship. ठीक है? So in previous, sir, in previous class we have discussed about what is entrepreneurship, and I have shared there, okay, how I see entrepreneurship. And many of us, those who are into entrepreneurship education, we see entrepreneurship as a lifestyle and a life skill. It is not a subject. What is it? It is a lifestyle. So we are not, हमें paper pass नहीं करना. We are not here to just to qualify the examination. Definitely we are going to qualify that, but the intent should be to learn this skill set, so that tomorrow down the line, if I am not happy with the job what I am doing, if I am not getting any job opportunity, I'll start something at my own. So that's why my request is, please start thinking like an entrepreneur, start behaving like an entrepreneur, and gradually you will find yourself in a changed domain. आपका सोचना, आपका perspective, सारी चीज़ें change हो जाएंगी. Only if you will practice it, not just by listening or not just by reading or studying this. You have to practice this. So I am not going to back that, but the entire story of entrepreneurship. Today's agenda is, who is an entrepreneur? Yeah. Anyone who is having their own enterprise or startup, those जो शुरू कर चुके हैं अपना, sir. So बाकी लोग, is there is anyone who is planning to कि भाई मुझे शुरू करना है? Good, it's a good number. So let's start. Who is an entrepreneur? An entrepreneur is an individual who identifies the need, जिसको हम opportunity कहते हैं, who identify the need in the market, take all necessary required initiatives and create a solution. That solution means that business. I said in my previous class also, if you are able to create a solution to any problem which is there in the market, आपके success के chances कैसे हैं? High हैं. If we are creating something out of my interest, out of my expertise, then I need to search for the customers for that particular product. But the story is different. If we go to market, try to understand what is problem there, where is the gap, and how we can come up with some solution to solve that problem, and how we can commercialize that solution, how we can sell that solution to the users. So entrepreneurs are often characterized by their willingness to take risk, innovate and work independently to bring their ideas to the reality. If I ask you simply, as per your understanding, what are the characteristics or qualities of an entrepreneur? Randomly आपको जो भी लगता है, क्या qualities होती हैं? Leadership. One by one please. Risk takers. Innovative. Time management, yes. Creative. Visionary. Decision makers. अगर हम लिस्ट बनाने लग जाएंगे ना, ऐसे ना बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएंगे, है ना? So if I ask you,
How many of you feel that you possess all these qualities in yourself? There are few hands, you know. Okay, no problem. अगर पहले से ये सारी क्वालिटीज होती तो आज हम कहीं पे बैठ के धंधा कर रहे होते ना, बिजनेस चल रहा होता अपना ना. ठीक है, वी आर हियर टू डेवलप दोज क्वालिटीज. Then who is an enterprising person? Similarly, the person, someone who tend to take initiative, who tend to start something, जिसको लगता है कि मुझे अपना कुछ करना है. मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, for those who are here for first time. See, being entrepreneurial doesn't mean that you need to start your business. If you are working with some organization, you can be entrepreneurial there also. If you are a homemaker, then only you can be an entrepreneurial. If you are a player, you are a sports person, there you can be an entrepreneurial. Being entrepreneurial means about applying your mindset. Means how you see the problem, how you solve that problem, how you do that thing which is happening there in a creative and effective manner. वो कहीं पे भी हो सकता है. बिजनेस करना ही जरूरी नहीं है. Yes, as we are MBA students means our relation is, directly we are connected to the business. That's why we will focus on how and we can apply these entrepreneurial qualities and entrepreneurship skill set in business. So who is an entrepreneur? As it is said, people those who take initiative, people those who start and manage new projects. Just like there are different types of entrepreneurs based on their different domains or sectors and all. Social entrepreneur, women entrepreneur, different type of entrepreneur, agri-tech, education technology, हमने ed-tech की हमने बात की. So these are, but all of they are possessing certain qualities. And what are those qualities? As you have, we have said randomly हमने बहुत सारे words हमने बोले कि अच्छा इसमें ये qualities होती हैं. So if we see, what are these characteristics? Creativity, risk taking, professionalism, passion, skilled planner, time management किसी ने बोला था, open mindedness, empathy, knowledgeable, visionary, and social skills. This is not the list, end of the list. If we go if we are going to create a list, that list will be endless, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से सोचना. ठीक है, we can say that one who has the quality of resource mobilizing, वो भी entrepreneur है. Effective utilization of those resources. See, all these are qualities. आप resource mobilize कर पा रहे हो, if you are not able to effectively utilize that mobilization effort is going to waste. So the list is endless, but we'll try to figure out how these qualities can be developed in one individual, and how we are going to assess out of these qualities or certain other qualities how much entrepreneurial we all are. We'll do that. ये हैंग हो गया. Yes, please go. Okay, so I asked this question, how many of you feel that you possess all these entrepreneurial characteristics, and which trait do you believe that are your strengths, and which areas you think that you could improve or scope for improvement is there? To assess that, to evaluate that, if I ask you simply ना, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि आप कितने entrepreneurial हो, so कोई कुछ भी कह सकता है. If you ask me how entrepreneurial you are, I'll say कि I am to my maximum extent जो मैं सोच सकता हूँ मैं उतना entrepreneurial हूँ. But reality may be different. और किसी को लगता हो यहाँ बैठे बैठे कि यार मैं तो entrepreneurial हुई ही नहीं. But हो सकता है कि उसके अंदर वो qualities and he is or she is not able to realize that. So realizing that, what we are going to do, we are going to do a assessment test today. Are you ready? कुछ लोग कहेंगे पहली क्लास में और पहली क्लास में टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट कैसा है? दिस टेस्ट विल हेल्प अस टू
understand our strengths, understand our weaknesses, what are the areas where I need to improve, what are the key areas I can pursue in my entrepreneurial journey, कौन से ऐसे areas है जिसमें मैं कर सकता हूं. तो this test will help us to understand that. This test is called GETT, General Entrepreneurial Tendency Test. ठीक है? It is a kind of tool, comprehensive assessment tool designed to help individual understand and improve their entrepreneurial capabilities by identifying strengths and weaknesses in key areas. GET to empower you to unlock your entrepreneurial potential. What is the genesis of this test? This test, which is called GETT version 2, because earlier there was a version 1 also. Improved version is GETT version 2. This was started by the professors in Durham University Business School. They came with a certain statements. You are supposed to respond to those statements. Just agree or tend to agree or tend to disagree. Not completely agree and completely disagree. What you are supposed to do, you are supposed to respond to each of these statements. कि आप ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आप थोड़ा सा सहमति की तरफ सोचते हैं या आप असहमति की तरफ सोचते हैं, जो आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना होता है उसमें. ठीक है? एंड व्हाट इज द GETT2 वर्जन में क्या है, 1 में और 2 में क्या है. 2 इज द रिफाइंड वर्जन एंड ब्यूटी इज GETT2 टेस्ट जो है, इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट असेसमेंट ऑनलाइन. हम सब, एवरीवन कैरिंग योर स्मार्टफोन, राइट? सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं. People, those who are listening this video, they are at home, you can also go through this test. Before going to that test, I just try to explain you how this test is helpful in assessing your entrepreneurial capabilities. What are those criterias? On the basis of the scores, no one is going to judge you. You can read your interpretation of the scores in your smartphone. And we will discuss how we can improve that, right? So what are the key components? This test is basically divided, or it is a composition of 5 components. First component is need for achievement. Second is need for autonomy. Third is creative tendency. Fourth is calculated risk taking. Fifth is determined drive or internal locus of control. These are the 5 criterias. अभी हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज या ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल की देखी. व्हाट दे हैव डन, दे हैव डेवलप्ड दीज 5 कंपोनेंट्स असेसिंग दोज क्वालिटीज इन एन इंडिविजुअल. अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ, दिस टेस्ट विल हेल्प यू. अगर आप ये 5 भी लिख देंगे और इनको एक्सप्लेन कर देंगे, वो जो एक लंबी चौड़ी 10-15 की लिस्ट बनने उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट रेफर टू एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्ट मोटिवेशन टू सेट एंड अकम्प्लिश चैलेंजिंग गोल्स. इट रिफ्लेक्ट्स अ डिजायर टू एक्सेल एंड अचीव अ सेंस ऑफ competence and mastery in specific areas. High need of achievement means the person is very motivated and driven to success. They have a strong desire to start, lead and complete projects. Need for achievement means, I'll make it very simple. These are the individuals, those who want to make their name. कि लोग मुझे मेरे काम से जाने. हिंदी मूवीज में आपने बहुत देखा होगा, बाप का अच्छा खासा बिजनेस होता है, कहीं कहीं पे दिखाते हैं कि कैरेक्टर जो हीरो होता है वो कहता है कि नो, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन, मैं अपना कुछ करूंगा. ऐसा नहीं है कि वो जो बाप का बिजनेस है इसको कर नहीं सकता है, बिकॉज उसको ये नहीं चाहिए कि ये बाप के दम पे आगे आया. कहीं ना कहीं देखिए, वी आर वेरी जजमेंटल नाउअडेज. तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे है, वी ऑल हैव स्मार्टफोन एंड ऑल इंटरनेट, वी कैन राइट एनीथिंग टू एनीवन.
So these are the people, those who feel that I want to do something at my own, मेरा अपना नाम होना चाहिए. अभी एक चीज़, एक एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा, चलो अभी वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाया. सपोज वो खेल जाता, कुछ अच्छा कर जाता, तो लोग कहीं ना उसको एक चीज़ इससे ज़रूर एसोसिएट करते कि अरे बाप इतना बड़ा प्लेयर था, है ना. सो काइंड ऑफ कि भाई इसको एडवांटेज था. लेकिन जो नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग होते हैं, दीज आर द पीपल दोज हु फील दैट कि आई विल क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, दैट टू बाय माई वर्क. जो मैं अपना काम करूंगा, अपना प्रोजेक्ट करूंगा, मैं उससे अपनी अपनी अलग पहचान बनाऊंगा. What is the importance of this particular quality? Individuals with high need for achievement are often driven to the pursuit of excellence. They seek feedback, continuously improve their skills. This drive can lead to the higher level of performance and success in entrepreneurship venture. What are the qualities? क्या qualities होती है इस तरह के लोगों में? They think about the future and plan ahead. They trust their own abilities to get things done. These are the people, they have positive, optimistic outlook on life. They focus strongly and on tasks and getting results. They manage their time well. They are, time management पे किसी ने बोला था, उनको clarity होती है कि how I can manage my time well. They push themselves and others to achieve the result. These people are very much goal oriented. उनको पता है कुछ अचीव करना है. आपने देखा होगा हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. पीपल, अगर हम लूडो भी खेलते हैं ना घर पे भी, फन पार्ट के लिए, उनको वहां पे भी हारना पसंद नहीं होता है. ऐसा नहीं है, दैट इज देयर इन देयर नेचर. तो इस तरह के लोग, दे बिलीव इन परफॉर्मिंग, दे वांट देयर टीम आल्सो टू परफॉर्म. दे आर एनर्जेटिक एंड ऑलवेज ऑन मूव. दे स्टैंड बाय देयर आइडियाज एंड ओपिनियन स्ट्रांगली. इस तरह के लोग, एज ए लीडरशिप की हमने बात की थी, सो लीडरशिप की क्वालिटी लीड फॉर अचीवमेंट में आती है. सच टाइप ऑफ पीपल, दे स्ट्रांगली बिलीव, उनको ऐसा लगता है, उनको ना किसी और के साथ, उनको किसी और के उसमें काम करने से उनको लगता है कि नहीं, मैं अपना आइडिया पिच करता हूं, मैं लीड करूंगा. सो दे हैव वेरी स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटी. दे आर डिटरमाइंड टू मीट देयर गोल्स इवन व्हेन दे फेस चैलेंजेस. दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड परसिस्टेंट टू अचीव देयर एम्स. दे आर सेटिंग चैलेंजिंग टास्क. ऐसा नहीं है कि उनका कि भाई मैंने नीड फॉर अचीवमेंट है तो मैं बड़ा सिंपल सा टास्क, सिंपल सा गोल सेट करूंगा. दे सेट देयर गोल्स ऑलवेज चैलेंजिंग एंड हायर, and then they put their all efforts to achieve those goals. They set challenging and realistic goals for themselves. They are willing to work longer hours and put extra effort to complete the task. अब एक नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज उसकी एक इंडिविजुअल की कवर हो गई. ये सारी, व्हाट ऑल दीज क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू, दीज क्वालिटीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द पर्सन टू अचीव देयर व्हाट दे हैव डिसाइडेड टू अचीव देयर गोल्स. So this is about need for achievement. As I said, these are the people, those who believe कि मैं अपना नाम बनाऊंगा और लोग मुझे मेरे काम से जानेंगे. Need for autonomy, as it is clear by name itself. ये वो लोग होते हैं जिनको आज़ादी पसंद है. They don't work, they don't prefer to, or they don't like to work under someone's supervision. ऐसे लोगों को कोई डायरेक्ट करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता. मतलब दे फील कि यार नो, वो काइंड ऑफ क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को दे बिलीव इन. ऐसा नहीं है कि वो अकेले में काम करना पसंद करते, ऐसा नहीं है. बट दे डोंट वांट समवन टू सिट ऑन देयर हेड, कि कोई उनके ऊपर बैठा हुआ कोई इनको ये बोल रहा है. आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कहीं ना कहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि क्या करना है ये बताओ, हो जाएगा, मैं कर दूंगा, कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी. आपको दे डोंट प्रेफर कि कोई आपको डायरेक्ट करेगा कि अब आप इसको ऐसे करो, ये करो, वो करो. नो, सच पीपल, दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. इसीलिए मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, समटाइम फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो कॉज स्टार्टिंग अ वेंचर. इफ यू आर वर्किंग विद सम ऑर्गेनाइजेशन, यू फील, यू बिलीव कि ये वाला आइडिया जो बहुत अच्छा है, बट योर बॉस इज नॉट एग्रीइंग, वो सुनने को तैयार नहीं है. सुन रहे हैं तो वो प्रॉपर वेटेज नहीं दे रहे हैं उसको. दे आर नॉट गिविंग यू द ड्यू रिगार्ड और दैट क्रेडिट. ऐसे बंदे को लगता है कि यार इससे तो अच्छा अपना ही कुछ करते हैं. सो सच पीपल आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल. नीड फॉर ऑटोनॉमी, it is the preference for independence decision making and self direction. Individuals with this trait value their freedom to make choices
and take initiative for their work. A high need of autonomy means the person value independence and prefer to do things at their own way. They are motivated, energetic, and often like to lead rather than follow. And what are the qualities in such type of people? They prefer to work alone, especially if they can't be changed. They can't. अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो कहते हैं कि मैं अपने आप ही कर लूँगा. They feel strong need to do things their way rather than working on project started by others. उनको लगता है कि किसी और के प्रोजेक्ट में काम करने से अच्छा है कि मैं अपना ही कुछ करूँगा. And they are individualistic and don't easily go along with the others. ऐसे लोगों को ग्रुप में या टीम में काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. क्यों मुश्किल होती है? वो लोग तब तक ग्रुप में काम करेंगे, तब तक टीम में काम करेंगे जब तक उनके ओपिनियंस को सब लोग वैल्यू करेंगे. द टाइम दे स्टार्ट की फीलिंग कि यार ये ना मेरा ओपिनियन मैंने रखा था, दे आर नॉट टेकिंग इट, दे आर नॉट एग्रीइंग इट, और या उनको लगता है कि वो अपोज कर रहे हैं, दे स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल. ये साइकोलॉजिकल है, नेचर में है. तो ऐसे लोग, अब ये देखो देखते दो एस्पेक्ट है. इंडिपेंडेंटली अपने आप ही सारी चीजें काम करना अपने आप में अच्छा भी नहीं है. यू नीड टू हैव दैट बैलेंस. लेकिन बहुत जगह पे आपको अपनी बात रखना, अपना ओपिनियन रखना, प्रोजेक्ट को लीड करना, बेसिकली इट इज अगेन द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप. जहां पे आप कहते हैं कि ओके आई लीड, मैं करता हूं. यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दे कम फॉरवर्ड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और रिजॉल्व दैट इशू. दे प्रेफर टू बी लीडर and don't like taking orders. They are unconventional and don't mind being different from the others. ऐसे लोगों को पता भी होता है, they accept, यार मेरा ना नहीं जमता है, मैं प्रेफर करता हूँ मैं अकेले में काम करूँगा. सब लोग कहेंगे कि यार इस दिन सैटरडे है, बैठ के काम करेंगे. वो नहीं, तुम लोग दिन में कर लो जो करना है, मैं तो रात को ही करता हूँ. दे आर डिफरेंट. उनको लगता है कि मुझे जो है आई कैन परफॉर्म बेटर व्हेन आई एम इन पीस. रात में उनको लगता है कि मैं है बहुत सारे. आज की जो जनरेशन है, आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत चेंज हो गई है, डिफरेंट रीजंस है. तो ऐसे लोग दे प्रेफर वर्किंग ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस. दे डोंट लाइक कि भाई एक्चुअली दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट देमसेल्फ फॉर अदर्स कन्वीनियंस. उनको उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई एडजस्ट करेगा चलेगा, लेकिन अगर उनको दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा तो वो उनको नहीं जमता है. ओके, दे आर डिटरमाइंड एंड स्टबर्न. जिद्दी होते हैं थोड़े. जिद्दी होना कहीं कहीं पे ठीक भी है. इन एंटरप्रेन्योरशिप जिद्दी होना आपको कैसे लगता है कि कैसे ठीक है? हाउ यू फील दैट बीइंग स्टबर्न इज गुड इन एंटरप्रेन्योरशिप? वन बाय वन प्लीज. अपने काम के लिए जिद्दी होना जरूरी है. आपको विश्वास होना चाहिए. एक फेलियर, दो फेलियर, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो जिद होनी चाहिए कि यस आई हैव सीन दिस इन माई माइंड, आई हैव विजुअलाइज दिस, ये होगा और मैं इसको करके रहूंगा. वो उस सेंस में स्टबर्ननेस या जिद्दी होना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंटरप्रेन्योरशिप में. थर्ड क्वालिटी, क्रिएटिव टेंडेंसी. व्हेन आई आस्क्ड यू, मैनी ऑफ यू सेड क्रिएटिव, इनोवेटिव, है ना? दिस इज द प्रीरिक्विजिट. अगर आपको एंटरप्रेन्योरियल होना है तो आपको क्रिएटिव होना ही है. So how we can assess and how creativity or creative tendency can help us, that we will see. Creative tendency refer to the ability to generate novel ideas and think outside the box. This component encompasses originality, imagination, and capacity to approach problem from different angles or different perspective. A creative tendency means a person is full of ideas and has an imaginative way to solve the problem. They often see things differently from the others and use their creativity to develop a solution that may be a product, process or project. How it is important in entrepreneurship, it leads to the innovative products, services or solutions that differentiate business in the marketplace. Even if an established business, they need to have such kind of tendency, creative tendency. If you are in market, if you are into business, if you are not creative, you will get out of the market very soon if you are not updating yourself. What are the qualities of these type of people? They are imaginative. Creativity के लिए सबसे important चीज है वो है imagination. For being creative, the first and foremost thing is being imaginative. Now I ask you one question.
एक छोटे बच्चे की और एक मैच्योर जो इंसान है, उन दोनों में से ज्यादा क्रिएटिव और जो इमेजिनेटिव कौन होता है? क्यों? फेलियर से नहीं डरता, गुड। और परसेप्शन नहीं है, और सॉरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप भी कुछ कह रहे हो? ज्यादा सोता, मैं छोटे बेबी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा जो भी बोल भी सकता हो, ठीक है। हाँ जी, आपने कुछ तो बोला, अच्छा ही बोला होगा, मेरे तक बात नहीं पहुंची। एनीवेज, सी वाई, बचपन में ना आई थिंक आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ ऐसा अनयूजुअल सा सोचा होगा, है ना। मैंने भी सोचा था कि अरे फुटबॉल है ना, किक मारेंगे, उड़ती 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 जाएगी, है ना। वो कौन सा था वो, क्रिश में, जो भी क्रिश वन में है ना, जो भी उसमें, तो वो वाला इमेजिनेशन छोटे बच्चे की हो सकती है। जैसे ही थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ी बहुत साइंस का नॉलेज आया, तो ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ का पता चला, देन वी स्टार्ट बिकमिंग रैशनल। ये तो हो ही नहीं सकता। जहां पे हम रैशनैलिटी लेके आएंगे, वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, इमेजिनेशन कम हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। क्यों लिमिट हो जाएगी? बिकॉज वी आर अवेयर दैट देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल रूल्स हैं, सोशल रूल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये लोग पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें, हमारी अपनी परसेप्शन, हमारी अपनी इमेजिनेशन। छोटा बच्चा, एज यू आर सेड राइटफुली, उसको ऐसी कोई भी प्री प्रिसेप्शन या उसके प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं होते उसके पास, वो कुछ भी सोच सकता है। इसलिए जब कभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की बात होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, वहां पे इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वन कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर वट एवर कम्स इन हर माइंड। कुछ भी आता है, बस आप लिखते जाओ, करते जाओ, बोलते जाओ। तो देन बीइंग क्रिएटिव, it is most important that you need to be imaginative. They use intuition, combining ideas and knowledge to make good guesses when needed. They enjoy change and challenge the dislike being stuck in the routine. They are versatile and can use their personal skill and resources to solve the problem. They are curious and interested in exploring new ideas. हमारे बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। हम लोग कभी अगर 7 दोस्त, 6 दोस्त, 5 दोस्त खाना खाने जाएं किसी रेस्टोरेंट में, मोस्टली हम लोगों की यह कोशिश होती है कि हम उस रेस्टोरेंट में जाएं जहां हम पहले गए हैं, वो खाना खाएं, वो खाना ऑर्डर करें जो हमने पहले खाया है। क्यों? क्योंकि हमारे को ना आइडिया है कि ये चीज़ ठीक है, यहाँ ठीक मिलती है। एक आध कोई बंदा, एक आध कोई मेंबर ऐसा होगा जो बोलेगा अरे कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नई चीज़ खाते हैं। ये वो लोग हैं जो नया ट्राई करने में, नया एक्सप्लोर करने में, सब लोग नहीं करते। मैं तो नहीं करता, ठीक है। अपना भी एक फिक्स सा मेन्यू होता है कि भाई यार यहाँ गए तो यही खाना है, जो भी है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में। दोज हु कैन एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दोज हु कैन ट्राई न्यू थिंग्स। इस तरह के लोगों की वजह से ही जितनी भी ये इनोवेशंस हो रही है ना, ये सक्सेसफुल हो रही हैं। अगर सब लोग टेस्टेड ट्राइड चीज़ों को खरीदते तो नई जो इन्वेंशन, नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उसको कोई ट्राई नहीं करता। लेकिन व्हाट, देयर आर सम पीपल इन द मार्केट जिनको हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, वो कुछ जो भी नया आ रहा है उसको क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। दे यूज, दे ट्राई इट, देन दे गिव फीडबैक, और उस फीडबैक की वजह से क्या होता है, फिर प्रोडक्ट बेटर होता है। और हम लोग, बहुत सारे लोग तब ट्राई करते हैं जब वो मोस्टली मार्केट में अच्छे से पहुंचा होता है। मूविंग अहेड, कैलकुलेटिव रिस्क, दिस इज अनदर क्वालिटी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई एंटरप्रेन्योर आर इंडिविजुअल दोज हु टेक कैलकुलेटिव रिस्क। नाउ व्हाट इज दिस कैलकुलेटिव रिस्क? Calculative risk means evaluating all possibilities and making a decision कि okay, सारी चीजें होने के बाद भी, even if it is going to be in a worst of the worst situation, still we will make some money, still we will learn something, still we will learn something or earn something. If we are able to do that, that is calculative risk. Calculative risk means evaluating all pros and cons of that particular decision and then deciding, then taking that decision. Calculative risk involves willingness to take risk after carefully evaluating potential outcomes and consequences. It reflects a balanced approach to risk and combining boldness with prudence. Calculative risk
कैलकुलेटिंग मीन्स अ पर्सन इज विलिंग टू टेक रिस्क, इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, सपोज इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी and the chances of being successful is only 5%, and if you feel you have all those necessary qualities or requirements that you will fall in that 5%, you will jump into that। जबकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये बेवकूफ़ आदमी है, चांसेस इतने कम है फिर भी इसने क्यों किया। क्यों? क्योंकि उसने इवैल्यूएट किया, he has evaluated his capabilities, resourcefulness and everything, then he took that decision। Again, calculative decision means it's not necessary that whatever you are deciding in forehand कि अभी आपके हाथ में जो है उसी चीज़ को आप particularly उसी टाइम पे डिसाइड कर रहे हो। If you are able to see, if you are able to evaluate that down the line, even after 5 years, 10 years, this investment may turn into $1 million investment, still people invest into that। शेयर मार्केट में तो लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं और उसमें एक उतना रीजनेबल जो उतना उनको लगे तो खो जाएगा तो उसमें कोई नहीं, वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। व्हाट ऑल दीज वेंचर कैपिटलिस्ट आर डूइंग, व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग मिलियन ऑफ रुपी इन द आइडियाज ओनली। अभी वो प्रोडक्ट आया भी नहीं है, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। दैट्स व्हाई दे हैव पिक सर्टेन प्रोजेक्ट्स। 8-10-20 जो प्रोजेक्ट उठाए हैं उनमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगा दिया है, एंड दे नो दैट इनमें से अगर एक भी चल गया तो मेरे इसकी सारी कॉस्ट के साथ साथ मल्टीपल टाइम जो है मेरे को रिटर्न भी देके जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कैलकुलेटिव रिस्क। एंड हाउ इट इज हेल्पफुल? बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, वी ऑल नो दैट, राइट। अगर सारी चीजें श्योर हो ना कि भैया यहाँ पे आप जैसे बैंक एफडी होती है, सबको पता है कि 6% 5% व्हाटएवर वो मिलना ही मिलना है, तो सब लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे आर पुटिंग देयर मनी इनटू दैट। They are not investing into some business, they are not investing into stock market, they are not investing into the startup and all। Why? Because they want a sure income। तो इसलिए उन्होंने वो जो क्लियर है उसमें अनसर्टेनिटी जहाँ पे वहाँ पे इस चीज़ का रोल है। And the people those who are having this type of quality, they are decisive and can make decisions even when they don't have all the information। अभी एक चीज़ ये समझिए, this line is very important। If the all information is provided, तब आपने डिसीजन लिया, तब तो बहुत सारे लोग लेंगे। some information but some of your knowledge and that risk taking capability। जहां पे थोड़ा रिस्क है वहां पे उतना ही हाई रिवॉर्ड है। वी ऑल नो दिस, राइट। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। सो पीपल दोज हु कैन सी if the information is limited, not enough of information is available, still they are investing, still they are applying their money there, they are risk takers, they are self aware people, they can accurately assess their own ability। उनको पता होना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है, what is the requirement of this project and how well I possess all those requirements। मेरे अंदर वो सारी चीजें हैं या नहीं है। if I own these qualities, I'll definitely invest into this। so they are self aware people, they know how and when, how much they need to invest in that। they are analytical, good at weighing the potential benefits against the possible cost of their action। they are goal oriented people, setting challenging but achievable goals for themselves। they effectively manage information and calculate। so this is another quality or the component of this test which we are going to evaluate। last but not least, this is internal locus of control or determined drive। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, people those feel, they believe that कि I am the owner of my own destiny। मैं अपनी एबिलिटी से, अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी परफॉर्मेंस से आई विल डिसाइड माई फ्यूचर। मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे मीन्स दे आर फुल्ली कन्विंस्ड दैट, उनको ये मानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं 100%, बट टू सम एक्सटेंट दे बिलीव दैट कि भाई लक जो है वो कंपोनेंट है, मगर इतना भी नहीं है कि पूरा मैं उसके भरोसे ही चलूं। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लार्जली दे आर believing and they are trusting their own instinct and own ability। such type of people, they are motivated in pursuing goals even if they face the obstacles, because they believe that whatever challenge may come, I have all the abilities to solve that problem, solve that challenge, I'll sail through and I'll make money, I'll make business। उनको पता है क्योंकि ये बिजनेस जो है ये किसी दुआ से नहीं चलेगा। ऐसा ज़रूर है कि भी ठीक है पूजा पाठ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके अलावा
बिजनेस भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। इस तरह के लोग वो लोग होते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि आई डिटरमाइन माई ओन डिसीजन और माई ओन फ्यूचर, आई एम गोइंग टू गिव दिस गो बिकॉज आई नो दैट आई विल अचीव दिस इन एट एनी कॉस्ट। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज में मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। दे आर द पीपल दोज फील दैट आई कैन डू दिस एंड दे बिलीव दैट आई विल मेक दिस हैपन। उनको सिंपली इतना पता होता है जो भी हो जाए, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट हमने पढ़े? फर्स्ट वाज नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट को अगर मैं वन लाइन में कहूं, इट इज इंटरनल मोटिवेशन, कि भाई मुझे करना है, किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। आई वॉन्ट टू मेक माई नेम, आई वॉन्ट टू be different and recognized just because of my own efforts and my own actions. Then need for autonomy. Need for autonomy था ना दूसरा. These are the people, those who prefer working independently. Third was creative thinking. We all clear on this. The fourth was calculated risk and fifth was क्लियर हो गया आप लोगों को? अभी आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक ऑन ग्रुप। अभी किसी और के पास, आपने बताया बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आप लोग आपस में शेयर कर लेना। आई एम गोइंग टू सेंड अ ग्रुप लिंक ऑन अ ग्रुप। मेरा 9891 300 888 9891 300 888 3 टाइम 8। एक ग्रुप जो था जिसमें मैं हूं उसमें मैंने भेज दिया, आप देख सकते हो। इसको शेयर कर लो जो बाकी ग्रुप्स हैं। ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे? ये पिछली बार तो हमने यहीं पे किया था। वी हैव डन दिस। हाँ, नेटवर्क नहीं है, सॉरी। हाँ, कोई आ रहे हैं तो देखिएगा, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो यू कैन एसेस एट होम, आप लोग घर पे कर सकते हो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप एक बार उसको कर लेना। अपने स्कोर पूरा एक्सप्लेन कर देता है ये। लिंक मिल गया सबको? हाँ, वेबसाइट बता रहा हूँ। इट्स www.get2test.net। www.get2 number means test.net। दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट यार। मतलब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं यहाँ पे और हमें इंटरनेट नहीं है। मतलब वाईफाई आप लोगों को है ऐसे इसका? चलिए क्या कर सकते हैं हम? किसी का चल रहा है? खुल गया? कितने लोगों को खुल गया ये लिंक? रेज योर हैंड्स। बाकी लोग ट्राई कर लो, शायद खुल जाए। इसमें ना गो टेस्ट करके एक आएगा। सी, देर आर 54 स्टेटमेंट्स। देर आर 54 स्टेटमेंट्स। आफ्टर एवरी स्टेटमेंट देर इज अ बॉक्स 10 टू एग्री और 10 टू डिसएग्री। आपको एग्री डिसएग्री जो भी आपको फर्स्ट थॉट जो आता है उसको पढ़ने के बाद उसके हिसाब से कर लीजिए, सबमिट कीजिए। ये आपको लास्ट में स्कोर देगा। यू कैन टेक योर टाइम। कितने लोगों का चल रहा है मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा। फिर बताओ, कोशिश करो।
देखो ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर मैं इसमें आके एक तरफ से बोलता ही जाऊंगा ना, कोई पॉइंट नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होकर करेंगे नहीं, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। आप एक काम कीजिए, अगर किसी एक के चल रहा है ना, साथ में देख लीजिए, अपने आप हम घर पे जाके भी कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास एक दो स्कोर आ जाएंगे ना, तो हम उस पर बैठ के कुछ एनालिसिस निकालते, कुछ एनालिसिस करते हैं। टेस्ट आ रहा है? हाँ हाँ, टेक गेट टू। खुल गया? टेक गेट टू कर लो। बस ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पढ़ते जाओ, रीसेट मत करो इसको, ठीक है ना? ये चल रहा है, आपको एग्री डिसएग्री जो भी लग रहा है उसको करते जाओ। चल रहा है बेटा? स्लो होगा, हाँ ठीक है, अब क्या करें, यहाँ यूनिवर्सिटी का नेट ऐसा है। हाँ बताओ बताओ। अरे क्या बात कर रहे, सारी दुनिया कर रही है, आपके लिए इनसिक्योर हो गया? ऐसा कौन सा वर्ल्ड बैंक का डेटा छुपा रखा है क्या आपने? बस ठीक है, यहाँ से आप शुरू करते जाओ, ये स्टेटमेंट है ना नीचे, ये पढ़ते जाओ और एग्री डिसएग्री जो भी आपको लगता है। चल रहा है आपका? नहीं चल रहा है? पीछे बैठे इंटरनेट नहीं, खिड़की पे है। फटाफट कर लीजिए। चल रहा है आपका? हो भी गया? गुड, दिखाओ रिपोर्ट, पढ़ लो। बहुत छोटा छोटा है। 83%। आया कुछ? अरे घूम ही रहा है आपका तो। चल रहा है? चलो फटाफट करो। स्लो है आपका? चल ही नहीं रहा? चल रहा है? अच्छा, इस टेस्ट की ना ब्यूटी ये है, ऐसा नहीं है कि इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन अस कि यार मेरे पास मेरा स्कोर कम आ गया तो मैं तो एंटरप्रेन्योरियल हुई नहीं, मैं यहाँ पे बंद कर दूं। दिस विल हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर वी नीड टू वर्क ऑन, वेयर वी नीड टू इम्प्रूव। तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगी कि नीड ऑफ ऑटोनॉमी हाई है या नीड ऑफ अचीवमेंट हाई है, कौन सा हाई है, लो कहाँ पे, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, क्या है? आई वुड नॉट माइंड रूटीन, अनचैलेंजिंग वर्क। आप कहते हैं कि आप जो रूटीन चल रही है ना, आप वही करते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगी। इफ़ द पे एंड पैशन प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी गुड, कि अगर मुझे पैसे वैसे मिलते रहेंगे ना, तो मैं अपना वही करूँगी, मैं मुझे ज़्यादा चेंज वेंज नहीं करना है ना? आराम से करना है, एक एक चीज़ को समझ के। जिसका अभी यहाँ पे नहीं हो रहा, घर जाके एक बार ज़रूर कर लेना। हुआ? चल रहा है?
किस किस का डन हो गया? कितना परसेंट स्कोर है? 74। हाईएस्ट किस में है? कौन से कंपोनेंट में? ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फ्यूचर नहीं, पूरा जो 5 है ना, जो ऑटोनॉमी, हाई ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट, अकेले रहना पसंद करती हो, देखो दूर बैठी हो, इंटरनेट के लिए गई होगी ना वहाँ तो। अच्छा वैसे ही बैठी थी वहाँ पे, देखो भाई झूठ नहीं बोल रहा टेस्ट। और किस किस का हुआ बेटा? हाँ जी, लोएस्ट किस में है आपका? हाँ, अगर आप इसको पूरे इंटरनेट में करोगे ना, जहाँ पे इंटरनेट का सही वो होगा, पूरा एक पेंटागन बन के आता है जो हर डायरेक्शन में बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट कम है तो इसलिए शायद पूरा वो डिस्प्ले भी नहीं कर रहा होगा। सबका हो गया? किस किस का रह गया? हो गया? टाइम लगेगा, चलिए ठीक है। ये डॉक्यूमेंट ना मैंने पूरा जो स्लाइड है इसके एक्सप्लेनेशन में बनाया हुआ है। स्लाइड के साथ साथ मैं ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में। आप लोग जो बाकी ग्रुप्स में प्लीज़ एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना, ये भी आपको हेल्प करेगा। यस प्लीज़। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, इसी स्कोर की बात कर रहा था, दिखाओ इधर। ओवरऑल जो 74% है, ठीक है, और नीड फॉर अचीवमेंट 75% है, एटोनॉमी 50%, ओके, और क्रिएटिविटी 83% है, हाईएस्ट है, रिस्क टेकिंग भी 83% है, हाईएस्ट है, लोकस ऑफ कंट्रोल 67% है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें कम है तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, या मैं क्रिएटिव या ऑटोनॉमी नहीं है। हर कोई परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी का कोई ना कोई एक डायमेंशन ऐसा है जिसपे उसको काम करने की ज़रूरत है। तो दिस स्कोर विल रिफ्लेक्ट यू, इट विल टेल यू कि आपको कौन सी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपकी इसमें ऑटोनॉमी की बात है, मतलब एज पर दिस स्कोर इट इज़ सेइंग दैट कि आप ना, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली उतना आप प्रेफर नहीं करती हैं। मतलब 50% स्कोर है, दैट मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ ग्रुप, टीम मेंबर, टीम पीपल टाइप, कि आपको टीम में काम करना अच्छा लगता है और यू परफॉर्म बेटर व्हेन यू आर इन टीम। इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर अपने को इंडिपेंडेंटली या हाई ऑटोनॉमी भी अगर अचीव करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? इनिशिएटिव लेके कर सकते हैं, लीड करके कर सकते हैं। आपको फॉरवर्ड आना पड़ेगा, प्रॉब्लम जो भी है उसको आपको देखना पड़ेगा कि हाउ माई आइडियाज आर गोइंग टू बी इफेक्टिव इन दिस। जब आप ऐसे सोचना शुरू करोगे तब ये चीज़ें सॉल्व होंगी। क्या हो गया आपका? डन, दिखाओ। नेट नहीं चल रहा है, ये कैसे हो गया फिर? ओवरऑल क्या है? 78। 92% है भाई आपका हाईएस्ट नीड फॉर अचीवमेंट। मतलब
क्या ऐसा है, आपको सच में मानती है ऐसे कि आप चाहते हैं कि आपको जो आपके काम से जाना जाए, है ना भाई? देख लो यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है आप लोगों के सामने। बहुत एवरेज, बहुत मतलब स्मूथ है आपका, हर डायरेक्शन में बराबर हो। लोएस्ट आपका है नीड फॉर अचीवमेंट में, वो भी 67, ठीक है। जबकि बाकी जो है 83, 75 से, बाकी ऐसा लग रहा है 75 वाला तो प्रॉपर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। कंट्रोल, रिस्क, क्रिएटिविटी, इसमें ना इस टेस्ट में ऑनलाइन करने का फ़ायदा क्या है, ये आपको इन हैंड आपको एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, आपको किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या है। ये सारी चीज़ें अपने को बता रही है कि मुझे इसमें ना काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा स्कोर कम है इसको हम काम करके कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं, इसी चीज़ पे अपने को आगे बात करनी है। अच्छा सुन लीजिए, अब किसी का ओवरऑल लेस देन 50% आया है, किसी का अगेन ओवरऑल स्कोर जो ऊपर आता है जीईटीटी का स्कोर जो है, किसी का ऐसा है जिसका लेस देन 50% है? 60%। किसका 60% है? 61। फिर भी आप एक ऊपर हो, ठीक है। कितना? 59 है। ये ना चैलेंज है, अगर आप लोग ही और मैं साथ दूंगा हम इसको बेटर कर सकते हैं। नॉट ओनली स्कोर, उसमें तो क्या है, रिवर्स करना है ना, आई मीन दैट पर्सनैलिटी। अगर आप एग्री कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि चेंज करना है, कैसे करना है, उसका पूरा प्लान बना के हम उसको चेंज कर सकते हैं। बट ओनली कंडीशन इज यू नीड टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार आ रही है, हमने कहा द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया वॉज नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट की जब हम बात करते हैं, अचीवमेंट का सीधा सीधा जो टारगेट है, सीधा सीधा जो रिलेशन है, दैट इज गोल। जिंदगी में आप जब कुछ गोल सेट करोगे, तब जब आप उसको अचीव करोगे तभी आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि यस सर, आई हैव डन समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग। सो व्हाइल वी आर सेटिंग अप दीज गोल्स, गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा। गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल होने चाहिए। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट इज बेसिकली स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अब ये ना बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है बोलने में, ये करने में उतना ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग, जब हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, दैट गोल व्हाट वी आर सेटिंग फॉर आवरसेल्फ, दैट शुड बी स्पेसिफिक। जब वो स्पेसिफिक होगा ना, अरे मैं इस साल ना बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत इज अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग। हो सकता है मैं 1000 रुपए को भी बहुत मान लूं, हो सकता है मैं करोड़ रुपए को भी बहुत ना मानूं। तो मीन्स स्पेसिफिक मीन्स कि मैं एक्स अमाउंट, इतना पैसा मैं बनाऊंगा। या आप लोग एमबीए कर रहे हो तो आप ये कहते हो कि भाई मैं जो है, मैंने अपना स्पेसिफिक गोल बना लिया, मेरा स्कोर जो है इस सेमेस्टर में इतने % होगा, या मेरा ग्रेड जो है ये होगा। प्लस प्लेसमेंट में अगर आप लोगों को बैठना है तो आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि दीज आर दी 3-4 कंपनीज, कि इसमें मुझे अपना प्लेसमेंट करवाना है। जब आपके पास इस तरह का एक स्पेसिफिक रिटन डॉक्यूमेंट है ना आपके पास, वो हुआ स्पेसिफिक, वेयर इट इज क्लियरली मेंशन्ड व्हाट एग्जैक्टली यू आर टेंडिंग टू अचीव। आप अचीव क्या करना चाहते हो, वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी ना ये बोलना बड़ा, अभी मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। नाम से तो किसी भी तरीके से जाना जा सकता है ना। काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो पॉजिटिवली लोग मुझे जानेंगे। न्यूज़ तो देखो, मतलब आप नेगेटिव भी करोगे तब भी बन ही जाएगी और ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, उससे फैलती ज़्यादा है नेगेटिविटी। बट दैट शुड बी स्पेसिफिक
कि आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं जो है इंडिया का ये बन के दिखा दूंगा, नेक्स्ट जो है यूनिकॉर्न बना दूंगा। जब आपने सोच रखा है, स्पेसिफिक है, तो बहुत सारी चीजें, गोल शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, answering the question what you want to achieve, why it is important, and who is involved into this. A specific goal help focus efforts and clearly define what success looks like. जब आपके पास गोल पूरी तरह से फिक्स होगा तो आपको पता होना चाहिए क्या गोल है, किसके द्वारा अचीव होगा, कौन से लोग इसमें लगेंगे, मुझे क्लैरिटी है। वो स्मार्ट गोल का पहला पार्ट। देन कम्स मेजरेबल। Goal should be included criteria for measuring the progress and success. See, it is very important when we are setting up our goals, process के उनको measure करने का भी criteria होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ultimately end result ही हम measure करने वाले हैं। Even when you are in the process of achieving that goal, the goal should be set like this कि आप जो है ना उसको in between process में भी आप measure करें। Suppose एक कंपनी है जिसने कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम अपना जो ग्रोथ है वो डबल कर देंगे। फॉर मेकिंग दैट ग्रोथ डबल मीन्स कि क्वार्टरली हमारी वो प्रोग्रेशन जो दिखनी चाहिए। क्वार्टरली जब आप मेजर करेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग दोज गोल्स, वो गोल आपका क्लियर होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अचीवेबल गोल। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ऐसा कुछ सोच लेना कि जो हो ही नहीं सकता, तो वो अपने आप में फिर कोई पॉइंट नहीं है उसका, जिसमें आपको भी पता कि ये हो ही नहीं सकता है। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल, कंसिडरिंग द रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट यू मे फेस। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकती हैं, ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। सपोज यू आर अ स्टार्टअप, आपके पास मैं आता हूं, मैंने ये कहा कि मुझे जो है, मैं पेपर की जो बोट्स बनती है ना जो बचपन में खेलने के लिए हम बनाते हैं, मैंने कहा कि मुझे ना आपसे अगले 1 घंटे में इस पर्टिकुलर डायमेंशंस की इतनी सारी बोट्स चाहिए। मैं आपसे पर रेट जो मैंने फिक्स कर लिया। अब उसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड साइज बता दिए। मैंने कहा कि A4 साइज की भी चाहिए, कुछ मैंने एक अजीब सा डायमेंशन दिया जिसमें आपको कटिंग के लिए टाइम लगेगा, और मैंने ये भी कह दिया कि मेरी जो बोर्ड जो मैं ऑर्डर लूंगा आपसे वो पर्टिकुलरली इस क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी में थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ तो मैं उसको रिजेक्ट कर लूंगा। अब ये देखिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर को आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। क्या मेरे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे मैं उसको मेजर करके काट सकती हूँ या काट सकता हूँ उस पेपर को? क्या मुझ में वो क्वालिटी, मैं जानती भी हूँ या जानता भी हूँ पेपर बोट बनाना? तो आपको जब आप गोल डिसाइड कर रहे हैं, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये अचीवेबल है और ये अचीवेबल नहीं है। बोलने को आपने बोल दिया सर मैं तो 1000 कर दूंगा, बोलना बड़ा आसान है ना, 1000 डिलीवर कर दूंगा, लेकिन जब आप बनाने लग जाओगे, जब आपसे पेपर टाइम से काटा नहीं जाएगा, सही डायमेंशन से वो बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं, सही से बैठेगा नहीं, तो वो अचीवेबल नहीं होगा। दैट मीन्स यू नीड टू हैव क्लैरिटी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना गोल फिक्स करें। सपोज अगर अभी एक चीज मैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, जिन लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है और इंटरनेट जिसका बहुत अच्छे से साथ दे रहा था, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ के फटाफट स्कोर कर दिया, क्लियर। ए, इंटरनेट साथ नहीं चल रहा था, बी, मुझे इंग्लिश समझने में भी टाइम लगता है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि क्या मैं इसको अगले, अगर मैं बोलता ना कि मैं मुझे अगले 5 मिनट में इसके स्कोर चाहिए, तो कितने लोग इसको डिलीवर कर सकते हैं, हम सब लोग देख सकते हैं। दिस इज अबाउट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद आवरसेल्फ। कि भाई ठीक है, मुझे अंग्रेजी उतने अच्छे से समझ नहीं आती है, मुझे एक सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए, तो इट विल टेक टाइम। कुछ लोग जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, कुछ लोग जिनका इंटरनेट बहुत अच्छा था, जिन्होंने क्विकली कर दिया। तो इसमें कोई, ये सिर्फ अपने आप को असेस करने वाली बात है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली यू, the external factor also play a key role. While you are setting up goals for yourself, you need to consider all the constraints. क्या क्या constraint हो सकते हैं? That's why it is very important while setting up goals, goals should be achievable. An achievable goal ensure that you are setting yourself up for success rather than setting yourself up for failure. जब आप achievable goal होगा ना, तो आपको चांस है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूं। जब आपको पता ये हो ही नहीं सकता है,
तब आपको पता है कि फिर ये नहीं होगा, फिर वो मरने वाला काम है। सपोज आपको बोला कि भाई एयरप्लेन से जंप करना है और पैराशूट भी नहीं लगाना है, ठीक है। जब आपको बोला कि एयरप्लेन से जंप करना है, पैराशूट है, खुल भी सकता है, तब भी चांसेस है ना। आपने एक दो बार ट्राई करके देखा, हाँ खुल रहा था, तो आपने नहीं खुलता ही है, कोशिश तो अचीवेबल है ना, फिर भी बचने के चांसेस हैं। पता है कि भाई है ही नहीं पीछे, फिर भी जंप कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना। गोल वो सेट करना, आपने बोल दिया कि भैया ठीक है, मैं ऐसा अगले 6 महीने में मैं यूनिकॉर्न बना दूंगी या बना दूंगा। 6 महीने में तो कंपनी स्टार्ट करने में भी अपने को टाइम लगेगा, तो ऐसा इतना बड़ा भी रियलिस्टिक रखिए। डाउन द लाइन आप ये मान के चलिए कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये मेरी कंपनी की प्रोग्रेस होगी, इस तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट को, अपने स्टार्टअप को ऊपर तक लेके जाऊंगा। रेलेवेंट goal should be aligned with your broader objective and aspirations. A relevant goal connects to your overall vision and meaningful to you. अब बहुत बार ऐसा भी आपने देखा होगा, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इन बिटवीन मुझे कुछ और करना है। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है ना, और बीच में मैं जो है थोड़ा अपना स्पोर्ट्स की तरफ भी चला गया कि मैं मैक्सिमम टाइम जो है मैं बैडमिंटन खेलने में उसमें लगा रहा हूं, और मेरा ओवरऑल गोल तो ये है। अब मैंने ये लिखा कि नहीं मुझे इस साल ये टूर्नामेंट भी जीतना, जबकि ओवरऑल गोल मेरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको मैनेज करके चलेंगे तब हेल्प करेगा। सपोज अगर मैंने यही कहा कि चलो ठीक है यार, मुझे ना सिविल सर्विसेज नहीं है मेरा एजेंडा, मुझे सिविल सर्विसेज नहीं करना है, मेरा एजेंडा जो है मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, और अब मैं स्पोर्ट्स भी ले रहा हूं, वो उसके साथ अलाइन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो गोल जो मैंने सेट किया है वो मेरा ओवरऑल जो लाइफ ऑब्जेक्टिव है या ओवरऑल जो विजन है उससे अलाइन करता है। अगर वो अलाइन करता है तो दैट गोल, उस गोल में क्या होगा, यू विल फील मोटिवेटेड, आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ हो रहा है, चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो आप उसमें और ज़्यादा लग के काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, टाइम बाउंड। वेन एवर वी सेट गोल्स, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना ही चाहिए। मेरे जैसे नहीं, मैंने एक गोल बनाया मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा, कब तक बनाऊंगा ये पता ही नहीं। 10-15 दिन अच्छे से खूब लग के एक्सरसाइज करता हूं, फिर एक ब्रेक ले लेता हूं 20-25 दिन का, फिर कभी कोई ताना मार देता है तो फिर मैं फिर शुरू हो जाता हूं। सो कोई रिजल्ट निकलेगा? आपको अगर अचीव करना है, इफ यू आर सीरियसली वांट टू अचीव, टाइम बाउंड होना जरूरी है। टाइम बाउंड से एक हमारे मतलब मेरी जो कम्युनिटी या मेरी रिश्तेदारी है उसमें से पहले आईएएस है वो, मतलब ही वॉज इन कॉलेज 80s, आज की डेट में अब रिटायरमेंट की एज पे शायद हो गए होंगे, आई डोंट नो। वो एक बार मुझे मिले तो ऐसे बात करते, मैं तब स्कूल टीचर ही था मैं तब, उस टाइम पे कहीं पे मिले तो मैंने ऐसे पूछा उनको, मैंने बोला भैया आपका रिश्ते में मेरे ऐसे बुआ मामा के तो होते नहीं, भैया कज़न टाइप में, तो मैंने बोला आपका क्या था, बोला आप कैसे आपने क्रैक किया उस टाइम पे? तो कह रहे ना मेरा एक प्रिंसिपल था लाइफ का, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, रात को मैं चाहे 1 बजे आऊंगा चाहे 2 बजे आऊंगा, मैं चाहे जिस मर्जी हालत में हूं, समझ रहे हो हालत पार्टी के बाद वाली, लेकिन मैं फिर भी बैठूंगा ही बैठूंगा। 2 घंटे जो मैंने सोचा है कि मैंने ये करना है तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मतलब वो कंसिस्टेंसी। टाइम बाउंड का मतलब होता है कि व्हेन एवर यू हैव नॉट सेट अ टाइम लिमिट कि मैं इतने टाइम में मुझे ये अचीव करूंगा, तब आपको वो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि मैं जो है आने वाले 2 हफ्ते तक हर रोज आधा घंटा जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डेडिकेट करूंगा या करूंगी। वो आधा घंटा कब होगा दैट इज योर चॉइस, बट दैट शुड बी कि भाई मुझे उन 2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरे पास एक अच्छे प्रॉब्लम्स का कम से कम एक 20-25 प्रॉब्लम का एक सेट मेरे पास होना चाहिए, जो प्रॉब्लम जिनका रेलेवेंट सॉल्यूशन जो है वो बन सकता है, और वो कब कैसे बनेगा वो नहीं, लेकिन जिसका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। ऐसी प्रॉब्लम की मैं लिस्ट बनाने के लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि फॉर कमिंग 2 वीक्स आई विल स्पेंड हाफ एन आवर एवरी डे ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है ना कि भी मेरे पास जो 25 प्रॉब्लम आएंगी एकदम से आ जाएंगी, मुझे वो 25 रेलेवेंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आई नीड टू राइट डाउन एटलीस्ट 250+ प्रॉब्लम्स।
उसमें से फिर मैं देखूंगा कि रैशनली रीजनेबली कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, तब जाके मेरे पास वो 25-20 की लिस्ट बनेगी। तो आई नीड टू सिट ऑन दैट, आई नीड टू रिसर्च, आई नीड टू एनालाइज, तब जाके मेरे पास वो लिस्ट निकलेगी। एंड दैट विल कम विद योर टाइम बाउंड। अगर आप स्पिरिट को रखेंगे कि मुझे रोज ये करना ही करना है, तब जाके ये चीज होगी। जिम वाले लोग ने उनका एक पैशन है, कुछ भी हो जाए वो जाएंगे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेन, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही है। अब चाहे वो उन्होंने पंगा लिया है या इच्छा से कर रहे, जैसे भी कर रहे, लेकिन वो टाइम बाउंड है। उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतने टाइम में ये चीज करनी ही करनी है। सो व्हेन योर गोल्स आर स्मार्ट, चांसेस ऑफ सक्सेस आर वेरी हाई। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट गोल्स? Setting smart goals is essential for improving your enterprising potential for several reasons. First is clarity. Smart goals provide you clear direction and purpose. Helps you understand exactly what you want to achieve and how to get there. Focus. By defining specific and measurable goals, you can concentrate your efforts on most important tasks, avoiding distraction and may हिंडर योर प्रोग्रेस। जब आपको पता होता है कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है, डिस्ट्रक्शन नहीं होती है, तब आप कितना मर्जी टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हो, बहुत अर्जेंट अगर आपका एग्जाम है या कुछ है, पहले 1-2 दिन कुछ तो कम होता होगा कि नहीं होता होगा? अगर तो आपने पढ़ रखा है तब तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर तो अर्जेंट कॉल भी अगर आता है तो उस पर भी बहुत गुस्सा आता है कि यार ये अब भी करना था क्या इसको भी। सो दिस इज हाउ फोकस। जब आपके गोल स्मार्ट होते हैं और आपके प्रोग्रेस, यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू अचीव दोज गोल्स, देन इट विल मेक योर लाइफ इजी, इट विल गिव यू more focus on your objective. Another important aspect of having smart goal is motivation. स्मार्ट गोल की एक और खासियत है, एज वी सेड, कि इट्स नॉट ओनली वी आर गोइंग टू मेजर द रिजल्ट, वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेजर द प्रोसेस ऑल्सो। इन द प्रोसेस व्हेन वी आर अचीविंग स्मॉल एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दो स्मॉल अचीवमेंट्स, दैट विल गिव अस मोर मोटिवेशन। छोटी छोटी खुशियां जो है वो बाद में बड़ा खुशनुमा माहौल बना देंगी। इसलिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, और छोटी छोटी जो भी हमारी स्मॉल और मेजरेबल गोल्स अगर हम सेट करेंगे, उनको जब हम अचीव करेंगे और उनको हम सेलिब्रेट करेंगे, दैट विल गिव अस मोर मोटिवेशन। अकाउंटेबिलिटी। स्मार्ट गोल creates a framework for accountability, allowing you to track your progress, make adjustment and need to say on course what it means. मैंने कहा ना आपको कि भी आपने बोला कि 2 वीक्स में मेरे पास 25 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, और आधा घंटा आप लगा रहे हो, 1-2 दिन मिस भी हो गए, कुछ भी हो सकता है, मिस हो गए। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपको पता है कि नहीं यार मुझे ये अचीव करना ही करना है। व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट डे यू विल स्पेंड मोर टाइम, next day you will spend more time. Why? Because you are compensating that. Why that compensating? Because you know that कि you are accountable for that. आपको कितने लोग वर्किंग हैं, जब आपको गोल मिलते हैं ना ऑफिस से कि यह काम है, टास्क दिया है, ये करना ही करना है। सपोज वीकेंड पे काम मिला है और मंडे को देना हो, सैटरडे तो ऐसे ख्वाबों में चला गया कि कर लेंगे, और संडे को कुछ हो गया, कर ही नहीं पाए, तो संडे रात पूरी रात जाग के भी कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है। नहीं होगा तो भाई कौन सुनेगा, मुफ्त में वो डांट है ना, फ्री में, उससे तो काम करके जाओ। सो अकाउंटेबिलिटी, जहां पे आपकी अकाउंटेबिलिटी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, वहां पे अचीव करने का मोटिवेशन या अचीव करने के लिए आपके एक्शन और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्शंस आपके रिक्वायर्ड होते हैं। अब जैसे इसने नीड फॉर अचीवमेंट को लेकर हर एक चीज का एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, स्मार्ट गोल में आई विल कंप्लीट अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन माय फील्ड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपने पहले सोच लिया कि मुझे ये करना है। सपोज किसी ने सोच लिया कि नहीं मैं डिजाइन थिंकिंग पे ना कोई कोर्स कर लूंगा, अगले 6 महीने के अंदर ही करना है। ये आपने वो सर्टिफिकेशन दैट विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट वाला जो हम बात कर रहे हैं कि आपको लगे यस सोशल मीडिया पे डाल भी देंगे ना कि बस आई हैव कंप्लीटेड दिस।
या आपने बोला कि सपोज आपके ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का जो चलता है ना कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो आप कहते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम तो ना वहाँ पे मेरा होना चाहिए, और जिस दिन आप वहाँ पे होंगे तो आप यू विल फील प्राउड. सो दैट इज वाई व्हेन यू सेट अ गोल स्पेसिफिक, वो आपको हेल्प करेगा. ऑटोनॉमी, जिन लोगों का नीड फॉर ऑटोनॉमी कम है वो कैसे कर सकते हैं? आई विल लीड अ टीम प्रोजेक्ट at work within the next quarter, ensuring that I make key decisions and communicate my vision to the team throughout the process. जिसको लगता है कि ऑटोनॉमी वाला, कुछ लोग हैं ना जिनको इंडिपेंडेंस वाले में कम है, दिस इज द वे. कुछ और नहीं कर सकते हैं तो घर में मम्मी को बोल दो, मम्मी इस बार का जो भी घर खर्च हो ना वो मैं मैनेज करूंगी. कितने पैसे लगते हैं आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करती हूँ कि उससे कम पैसे में करने की ट्राई करूंगी या करूंगा, है ना. तो हम उस तरह से कर सकते हैं. अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा, अपने आप को देना पड़ेगा, तब हमारे अंदर ये चीज डेवलप होगी. क्रिएटिव, इस पे हमने जैसे बात कर ली. आई विल ब्रेनस्टॉर्म टू डेवलप अ न्यू मार्केटिंग आइडियाज फॉर आवर प्रोडक्ट लाइन बाय एंड ऑफ दिस मंथ. कैलकुलेटेड रिस्क की जब हम बात कर रहे हैं, आई विल रिसर्च एंड इवेल्युएट 2 न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विद इन द नेक्स्ट 2 months, analyzing potential risk and benefits before making decision on whether to pursue them. Last is locus of control, जिसकी हम बात करते हैं, determine drive. I will set aside 30 minutes each day for the next month to work on my business plan, ensuring that I will make consistent progress despite of any challenges that आपको ये पता है कि ये मैं कर सकता हूं, मुझे करना पड़ेगा, तब आप ये अगर आप सेट करोगे. अब एक बोलने वाली बात है कि यार 1 महीना तक बिजनेस प्लान बनाने में, बिजनेस प्लान अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है. वो आपके बिजनेस के सारे प्लस माइनस जो भी अंदर की कहानी है ना, उस सारी चीज़ की है. उसने ये नहीं बोला कि भाई मैं लास्ट के 3 दिन बैठ के करूंगा. इट इज सेइंग कि मैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं रोज आधा घंटा बैठ के अपने बिजनेस प्लान को प्रोग्रेस करूंगा. प्रोग्रेस करने का मतलब है कि वट एवर यू आर क्रिएटिंग, वट एवर यू आर डेवलपिंग, यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट विद द रेलेवेंट पीपल. You are getting the feedback, you are incorporating that feedback in your business plan and making it better. और ऐसे ही हम फिक्स कर सकते हैं कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके उसका बिजनेस बना के अगले 3 महीने में जो है ना कहीं किसी इवेंट में जो है उसको पिच करूंगा और स्टार्टअप फंडिंग के लिए पिच करूंगा. जब हम ये सारी चीज़ें मान के चलेंगे, दिमाग में रख के चलेंगे, तब हम सोच सकते हैं कि सारी चीज़ें हो सकती हैं. अभी ना मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच ही रहा था अभी और आप लोग चल दिए, ऐसे कैसे? नीड फॉर अचीवमेंट कंप्लीटेड, सही है. गोल ही इतना रखा था क्या? टाइम गोल था इनका 4 बजे का, उससे भी 5 मिनट पहले निकल लिए. सोचो कितना मतलब टाइम बाउंड है. इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? एवरीथिंग, साइंटिफिक टर्म है ना वैसे तो, है ना, लेकिन हम इसको एंटरप्रेन्योरियल वे में या एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम क्या है? वी हैव हाफ एन आवर, राइट? 4:30 बजे तक है ना, तो आधा घंटे में हम इकोसिस्टम की बात करते हैं. इकोसिस्टम है क्या चीज? स्टार्टअप इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, मैं यस पिछली क्लास में भी मैं ये स्लाइड्स दिखा के छुपा दी थी मैंने ना, फिर बाद में हमारी बात इधर उधर हो गई. तो ये तो पुरानी स्लाइड है. एज आई सेड, इंडिया जंप टू 37 पोजीशन इन 22. वर्ल्ड बैंक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी हम बात कर रहे हैं. वी वर एट 142 पोजीशन इन 2014. ऐसा क्या हुआ 2014 में कि उसके बाद हम कॉन्टिन्यूसली जंप करते करते आज जो हम लेस देन 30 पे हैं? सॉरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस और गवर्नमेंट चेंज हो गई. बिल्कुल सही बात है. मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया. ऐसा नहीं है, देखिए कि भाई पहले वाली गवर्नमेंट का फोकस नहीं था.
पहले वाली गवर्नमेंट भी कुछ कर रही थी, लेकिन वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी इस चीज पे। ज्यादा पुश हुआ है, क्यों पुश हुआ है? बिकॉज व्हेन दिस एनडीए गवर्नमेंट केम इन 2014, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम एक जो यूथ है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोलते ही हमारे देश में एक और कहानी, हमें सीधा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं सरकारी नौकरी ही दिखती है लार्जली, जबकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। आप मुझे ब्लेम कर सकते हो क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी करता हूं, बोलेंगे बोलना आसान है इसके लिए, है ना, लेकिन फैक्ट है ये। सपोज मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा होता तो मैं भी कुछ ना कुछ तो कर रहा होता। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि ये जो यंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, अगर इसके लिए कुछ और नहीं किया, क्योंकि यंग पॉपुलेशन, जॉब सीकर की पॉपुलेशन, इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर मैडली, बुरे हाल से, ठीक है। हर साल जो हम इतने ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स निकालते हैं जो जॉब सीकर की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज दिस, दे रियलाइज दैट वी हैव पोटेंशियल, दिस यंग पॉपुलेशन, एनर्जी जो इतनी हाई एनर्जी है हमारे पास, इफ वी नीड टू चैनलाइज दिस एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन, we need to make it better and easy for them to start their business. This is the reason that government in 2016 came with the Startup India concept, Stand Up India concept, ठीक है, multiple schemes were there, Atal Incubation Center started, incubation centers in higher education institutions started, startup policy नहीं लेके आए, as you were saying single window clearance शुरू कर दिया, इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको क्या कर दिया, फेवरेबल कर दिया, सो दैट पीपल दोज हु आर फीलिंग कि यार बिजनेस करना मुश्किल है, दे विल स्टार्ट कमिंग एंड स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। दे हैव मेड इट इजी। बिलीव मी, इफ एवरीथिंग इज विद मी, आई कैन सिट ऑन अ कंप्यूटर एंड मैं कंपनी बना के खड़ा उठ सकता हूँ। हमारी कंपनी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट्स ही क्लियर नहीं होते, पता नहीं होता अपने को पहले तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर मुझे पूरा थॉरो नॉलेज है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी हैं, मैं वन गो में कंपनी स्टार्ट करके उठ सकता हूं। जहां पे कंपनी बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा था, आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो लोग इन अ वीक जो है कंपनी फॉर्मेशन करके सारी चीजें करके क्लियर कर देते हैं। सो गवर्नमेंट केम एंड दे अंडरस्टूड कि ये चीज ना इनको आसान करनी पड़ेगी, वी नीड टू मेक इट ईजी फॉर देम, then only we can mobilize this population, this energy in a right direction. So India is continuously improving its score in ease of doing business. Still lot need to do. अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। One such example is enforcing a contract. We are at 163rd, again this is 22 data, and registering a property 154th rank. It takes 58 days and cost of on average of 7.8% of property's value to register it. Longer and the greater cost than among the other organizations or other economies. Similarly, it takes 1445 days for a company to resolve a commercial dispute. तो इतना अगर टाइम लगता जाएगा तो कौन आएगा बिजनेस करने के लिए? सो दीज आर द एरिया स्टिल कंट्री कंटिन्यूसली इंप्रूविंग। हाउ दिस डेटा इज, ये जो फिगर निकलती है कैसे निकलती है? देर आर सर्टेन थिंग्स वी नीड टू क्वालिफाई, देन ओनली आवर स्कोर गेट बेटर्स। ये कौन से हैं? स्टार्ट ऑफ बिजनेस, गेटिंग लोकेशन, accessibility to finance, dealing with the day-to-day operations, or operating in a secure business environment. There are number of other factors also. So better these quantitative indicators, better the global rank is. And how we can make it better? The answer is by providing a conducive entrepreneurial ecosystem. Ecosystem, as it is very clear, it consists of two terms. First is entrepreneurial and second is entrepreneurial refers to the startup and mostly on their initial phase. Startup क्या है? Any business which is younger than 10 years of life. Definition जो गवर्नमेंट की है, earlier it was 5 years, then they have increased to 7 years. आज की डेट में 10 साल से यंग जो भी बिजनेस है, इनोवेटिव हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, और उसको हम स्टार्टअप की कैटेगरी में रखते हैं। स्टार्टअप की कैटेगरी का मतलब क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स जो शुरू किए हैं, ऐसे तो हर कोई खड़ा हो जाएगा कि मैं भी, मुझे टैक्स बेनिफिट दे दो, ये बेनिफिट दे दो, वो बेनिफिट।
तो उन्होंने एक बेंचमार्क रखा है कि अगर आपका बिजनेस, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, इफ योर एंटिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटर देन 2 years, अगर आपके 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल. इट इज फॉर द यंगर organizations. If you have raised 10 lakh or more rupees from the government grant, you are not eligible for second round of grants. So ये उन्होंने clearly mention किया है, बेंच लाइन है. तो इकोसिस्टम क्या है? It is nothing. It is generally the actors and factors which intersect or integrate and create an environment where we can produce, create or develop ventures. जहाँ पे ये जितने भी एक्टर्स और फैक्टर्स हैं, जहां पे ये मिलके एक नया वेंचर बन सकता है. सपोज मैं आपको बताता हूं आगे. देयर आर 6 कंपोनेंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स फेवरेबल हैं, इसलिए कंट्री का स्कोर जो है वो बेटर से बेटर होता जा रहा है. इनमें से एक भी कंपोनेंट अगर फेल हो जाएगा, एक भी कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, तो स्कोर फिर से गिर जाएगा. द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इज अ सेट ऑफ फैक्टर दैट इंटरेक्ट टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच में भी फेवरेबल और अनफेवरेबल भी हो सकता है. अगर फेवरेबल है तो बेटर रिजल्ट्स होंगे, अनफेवरेबल है तो रिजल्ट्स कैसे होंगे? एडवर्स होंगे, खराब होंगे. सो व्हाट आर दीज एक्टर्स एंड फैक्टर्स? देयर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस. द बेस्ट डेफिनेशन बाय डेल एलिजनबर्ग, व्हाट ही इज सेइंग, he has given these 6 components. What are these 6 components? First is policy, finance, culture, support, human capital and market. अगर ये 6 कंपोनेंट हैं, अगर हम 2014 के बाद की प्रोग्रेस अगर इंडिया की हम देखते हैं, तो वी विल फाइंड दैट ऑल दीज 6 कंपोनेंट्स आर वेरी फेवरेबल फॉर द स्टार्टअप्स. दैट इज द रीजन दैट द स्टार्टअप्स आर कमिंग. 100+ यूनिकॉर्न बना दिए हमने, जबकि शुरू में हमारे पास कितने यूनिकॉर्न थे, और आज यूनिकॉर्न के निकलने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ है. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि बायजूस जैसे तो वो फ्लॉप भी हो रहे हैं. यस देयर आर, बट स्टिल all these components are very favorable. As we talked about policy, in 2014 when government changed, they came with the policy, Startup India policy. पूरी policy ही लेके आए. Startup India policy, Stand Up India policy, सारी policies, आप चाहे टैक्स पॉलिसी ले लो, इंसेंटिव से रिलेटेड पॉलिसीज ले लो, फाइनेंस से रिलेटेड पॉलिसीज ले लो, सारी पॉलिसीज कैसी कर ली? लिबरल कर दी. सारी पॉलिसीज कैसी कर दी? ईजी कर दी, ताकि लोग जो है वो, क्योंकि देखिए एक चीज है, प्रोसेस अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत सारे लोग जो है वो इनिशियल स्टेज पे ही आइडिया ड्रॉप कर देते हैं. जब मुझे लगेगा ना कि यार बहुत झंझट है, तो मैं उसका शॉर्टकट ढूंढना शुरू करूंगा. लाइसेंस बनाते, लाइसेंस है ना, बहुत झंझट है, लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिए उसके. ठीक है, तो पॉइंट इज गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग जो है वो अट्रैक्ट हों. सो पॉलिसीज वर वेरी फेवरेबल. देन कम्स फाइनेंस. फाइनेंस की, अगर पिछली क्लास में कोई कह रहा था कि भाई पैसे नहीं है, आइडियाज तो हैं, बिलीव मी, आपके पास अगर आइडिया है और वो आइडिया वर्थ इट है, आपको पता भी नहीं होगा कि कितने लोग उसमें पैसा लगाने के लिए आपस में लड़ेंगे. पॉइंट इज आइडिया में वो बात होनी चाहिए. आप अगर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ यू आर सॉल्विंग अ वेरी प्रोमिनेंट प्रॉब्लम, अगर आप सोसाइटी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो पैसा कैसे आपके पास आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो पॉइंट इज फाइनेंस जो है आज की डेट में प्रॉब्लम नहीं है. फाइनेंस की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स निकाल दी. मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेटर्स, इतने सारे इंक्यूबेटर सेट कर दिए जो इनिशियली 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक जो है वो 1-1 करोड़ रुपए जो इंक्यूबेटर जो है स्टार्टअप आइडियाज को दे रहे हैं. एंड दैट टू विद अ वेरी मिनिमम रेट. अगर हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की भी अगर हम बात करते हैं, या कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको हैरानी होगी जान के उस पर इंटरेस्ट रेट जो है ना वो रेपो रेट के बराबर है. और रेपो रेट आज की डेट में शायद 6% है, कभी 4% होता है, ये फ्लक्चुएट करता है. तो बेस्ड ऑन रेपो रेट, इतने कम रेट पे बिजनेस के लिए आपके लिए पैसा दिया जा रहा है. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल्चर. इंडिया में कल्चर बहुत बदल गया. कल्चर बदल गया मीन्स एक्सेप्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सेप्टेंस फॉर स्टार्टअप इज वेरी हाई नाउ. हाँ, मैं ये भी मानता हूं, हालांकि नाम के बदलने का भी फेर है. ठीक है, हमारी सोसाइटी ऐसी है ना आज की डेट में. देखो, आज से 20 साल, 50 साल पहले, 30 साल पहले अगर कोई बोलता था कि भाई ये अपना बिजनेस करता है, तो लोग ये मान के चलते थे कि इसका कहीं कुछ नहीं हुआ इसलिए अपना बिजनेस कर रहा है.
आज अगर कोई ये बोलता है कि ये एंटरप्रेन्योर है, अपना स्टार्टअप करता है, तो लोग उसको ना अलग एंगल से देखते हैं, यार ठीक है यार, क्यों ये चेंज कैसे आया सोसाइटी में। आज भी अगर पेरेंट्स को ये बोलते ना बच्चा कि भाई जहाँ पे आईआईएम से एमबीए करके अच्छी जगह से, जहाँ पे लाखों रुपए फीस देके, आईआईटी से करके इतनी बड़ी फीस देके वो बोले कि नहीं मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो स्वागत किस चीज़ से हो सकता है हम सब लोग भली भांति जानते हैं, है ना। ये चेंज है। अब लोग जो है, क्योंकि थैंक्स टू शार्क टैंक, आज इंडिया के छोटे से छोटे गांव में भी लोगों को पता है कि ऐसा हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है। स्टार्टअप एक कल्चर, एक अच्छा करियर ऑप्शन है। थोड़ा नाम में भी फर्क है। स्टार्टअप तो एक बज़वर्ड हो ही गया, एंटरप्रेन्योर बोलने में अपने आप में बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है। पहले क्या था, मैं अपना काम करता हूँ, वो बड़ा ऐसा लगता था, है ना। वही फर्क है। क्या लड़का क्या करता है, हेयर डिज़ाइनर है ना, तो वो बड़े ड्रेस, वो क्या कहते हैं, फैशन डिज़ाइनर है। दर्जी बोलेंगे तो फिर वो कहानी अलग हो जाएगी, नाई बोलेंगे तो कहानी, नाम का भी फर्क है। कल्चर चेंज हो गया है। नाउ पीपल, अब वही वाली बात है, शेफ कितना बड़ा नाम है ना, शेफ बोलते ही, एंड पीपल, शेफ बोलते ही लोगों को ना ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ये वर्ड ऐसा है कि रिस्पेक्ट आनी शुरू हो जाती है। बावर्ची बोलेगा, कुक बोलेगा तो थोड़ा है, मतलब जो भी कल्चर चेंज हो गया है। नाउ पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग दिस कल्चर। मेरा बेटा अगर आके मुझे बोलता है ना कि भाई पापा मुझे ना अपना वेंचर करना है, मैं बड़ा खुशी खुशी बोलूँगा। 7th में पढ़ता था, तो मैं तो खैर ये एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा आ रहा हूँ, तो उसने भी देखा है मुझे, तो उसने शार्क टैंक टूंग देख के आके ना, मैंने किसी चीज़ के लिए उसको बोला, तो मुझे कहता है कितने % इक्विटी दोगे, है ना। तो वो मतलब छोटा बच्चा 7th में पढ़ रहा है, तो उसको ये चीज़ क्लैरिटी हो गई है कि अच्छा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। इक्विटी क्या होती है बेशक उसको पता ना हो, लेकिन उसको पता है कि भाई बदले में कुछ चाहिए, है ना, मतलब कंसिडरेशन है वहाँ पे। सो ये चेंज है, ये कल्चर है। छोटा छोटा बच्चा, पुराने लोग कितने सारे हमने शार्क टैंक में देखे, बहुत सीनियर लोग भी अपना वेंचर कर रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को लेके आ रहे हैं। तो कल्चर इज चेंज। सपोर्ट अगेन, बी इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट इज ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। मैंने कहा ना कि भाई स्टार्टअप्स का फेलियर रेट बहुत हाई था पहले, अभी इंप्रूव हो रहा है, बेटर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले लोग एरर एंड ट्रायल मेथड कर रहे थे, है ना, गलती कर दी फिर करेंगे फिर देखेंगे। आज की डेट में क्या है, इतनी सारी तो हैंडबुक्स आ गई, किसी ने स्टार्टअप ने अपनी जर्नी लिख दी, ये नहीं किया ये किया। कितने सारे ये जो मेंटर्स हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, आपको कभी भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेट अवे गो टू देम, डिस्कस योर प्रॉब्लम, दे विल हैव सॉल्यूशन टू दैट। दे विल स्टॉप यू, यू नो, कि भाई ये मिस्टेक मत करना। दे विल गाइड यू कि ये चीज़ कर लो, इससे फायदा है। आई मीन यू विल गेट कंप्लीट हैंड होल्डिंग। अगर आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग एट इनिशियल स्टेज मिलती है, तो फेलियर के चांसेस कैसे हैं? कम है। देयर इज चांसेस कि आपके पास जो है मतलब सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अदर देन दैट, लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज, टैक्सेस से रिलेटेड सर्विसेज, सारी चीजें इन हाउस इंक्यूबेशन में जब आप जाते हैं ना, उनके पास सब लोग एसोसिएटेड है। ड्यू डिलीजेंस करना है, कुछ भी करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप को। स्टार्टअप क्या करता है? आई हैव सीन दिस। स्टार्टअप क्या करता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, सर्विस बना लेगा, उसको बेचारे को ना ये नहीं पता होता कि कंप्लाइंसेस क्या क्या होते हैं। उसको पता ही नहीं है कि भाई मुझे ये काम भी करना होता है। तो वहाँ पे काम, इससे क्या हो सकता है, उसको लेटर जो है इनकम टैक्स की तरफ से कहीं से हैवी पेनल्टी लग सकती है। वहाँ पे हैंड होल्डिंग काम करती है। दे विल प्रोवाइड हिम एंटायर चेकलिस्ट की आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इफ़ दे आर डन विद दैट, दे आर हैप्पीली डूइंग बिजनेस। अदरवाइज वो प्रॉब्लम होती है तो बहुत मुश्किल होता है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ह्यूमन कैपिटल। थैंक्स टू दीज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, थैंक्स टू दीज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, थैंक्स टू SOL ऑल्सो। तो आज की डेट में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर तरह का ह्यूमन कैपिटल है अपने पास। किस तरह के लोग चाहिए? अरे भाई सिलिकॉन वैली में अगर हम जाके देखेंगे ना, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं जो हमारे इंडियन ब्रेन चला रहे हैं, जिनको हमारा जो ब्रेन था वो ड्रेन होके वहाँ पे जाके उन्होंने वंडर कर दिए। सो नाउ इकोसिस्टम इज सो गुड, पीपल आर कमिंग बैक, दे आर स्टार्टिंग समथिंग एट देयर ओन प्लेस, जहाँ पे उनका वर्थ हुआ है। सबका होता ना एक एसोसिएशन, खूब पैसा कमा लिया उसके बाद तो कहीं ना कहीं तो याद आती है ना कि यार मेरा गाँव, मेरा देश, फिर लगता है कि नहीं यार उनके लिए भी कुछ करना है। सो पीपल आर कमिंग बैक। सो दिस इज हाउ वाई एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर नाउ। अब अपने पास हर तरह का ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड, ट्रेंड, अनट्रेंड, जैसा भी चाहिए, हर तरह की कैपिटल जो है। हमारी मार्केट, हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए।
लास्ट बट नॉट लिस्ट, मार्केट। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं आज। मार्केट इज वेरी ओपन, डायनामिक, लोगों के खर्च करने की पावर बढ़ गई है। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करोगे ना, तो दे वर मोर इनटू सेविंग, कि कमाएंगे बचाएंगे, कमाएंगे बचाएंगे ताकि आप लोग ऐश कर सकें। ठीक है, हमारा मानना क्या, हमारी जनरेशन क्या करती है, हम लोगों ने कमाया यार, बच्चों को बचाने वाला तो इतना मिला नहीं कि बचा भी, खर्चे इतने हो गए मेरे तो। ठीक है, अब आपकी वाली जो जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, मंडे टू फ्राइडे वर्क लाइक स्लेव, सैटरडे संडे लिव लाइक किंग और क्वीन, है ना। तो फिर कहीं भी चले जाओ, कमाओ, खर्च करो। आप पूछना अपने पेरेंट्स से, उनका जो पहला फ़ोन था, स्मार्टफोन या सेल फोन जिसकी हम बात करते हैं, कितने साल चलाया था उन्होंने, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दैट फोन, और व्हाट वाज देयर एक्सपेक्टेशन कि कितने टाइम तक चलेगा। आज की डेट में 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीद रहे हैं, हफ्ते बाद ही स्क्रीन टूट रही है, तो कोई ऐसा कोई खास दुख हो नहीं रहा है। उस टाइम पे अगर 1.5 लाख रुपए की कोई चीज़ टूट जाए तो शायद बंदा सदमे में चला जाए ना। ये कहानी है, ये चेंज है, मार्केट चेंज हो गया है, पीपल आर मोर इनटू स्पेंडिंग। कंजूसों की जो प्रजाति है ना वो विलुप्त होती जा रही है, सब दिलेर हो गए हैं। दिलेर क्यों हो गए? क्योंकि इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में पैसा खूब है। एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अच्छी सैलरी हैं, बाकी जो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं, जॉब छोड़िए, फ्रीलांसर अपने आप में क्या कुछ कर रहा है, बस क्रिएटिव है बंदा, अगर सही है तो वो स्टूडेंट होते होते कितना कुछ कमा रहा है, और जो कमा रहा है वो खर्च भी कर रहा है। शौक भी ऐसे है ना, मुझे नहीं लगता कि, खैर मैंने तो पहना है, जो पैंट फटी हो या कुछ हो तो उस पर वो मतलब, क्योंकि गांव में रहे हैं ना, तो 70s में का 8 का मेरा वर्थ है, तो 80s वाला तो वो दौर ही था वो सिलाने वाला, आज तो फेंकने वाला है। सिलाई फट गई, बंदा रिपेयर नहीं करवा रहा, उसको कह रहा है नया ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया है। डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है, लोगों को वो ना चीज़ों के साथ वो अटैचमेंट भी नहीं है। एक एक घर के नीचे 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चलाने वाले 2-3 हैं, 1-2 तो सिर्फ पार्किंग की जगह ब्लॉक करने के लिए है कि नहीं तो पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है। मार्केट कैसा है? मार्केट वेलकम करने वाला मार्केट है। आप कुछ भी नया बनाओगे, थोड़ा सा वैल्यू प्रोपोजिशन अगर होगा, सामने वाले को अगर आप बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट से ये फायदा होगा, ट्राई करने के लिए सही ले लेगा। लेकिन आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग। अर्ली अडॉप्टर्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। पीपल फील, उनको एडवेंचर लगता है, कुछ नया ट्राई किया, नया खरीदा, अरे तो अब क्या हुआ, अरे ये तो अभी आया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या हो जाएगा, और ले लेंगे। तो ये है, ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, मार्केट वेलकम करने वाला हो गया है। ये सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो फेवरेबल हैं। इसीलिए हमारे देश में यूनिकॉर्न्स का नंबर जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए मोर पीपल आर टेंडिंग टूवर्ड डूइंग देयर ओन स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि सिचुएशन, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कल्चर, सपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल, मार्केट, इट कवर्स एंटायर इकोसिस्टम। तो एंटायर इकोसिस्टम इज पॉजिटिवली favorable for the startups. This is the reason that now we have more startup in our country. जब हम सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं ना ये स्टार्टअप्स की, उसके पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं, वर्थ एंड डेथ और सर्वाइवल रेट ऑफ न्यू बिजनेस, जो पहले बहुत कम था अब धीरे धीरे बेटर होने लग गया है। बर्थ रेट तो ज़्यादा ही हो गया है। आज की डेट में अगर आप 10 लोगों से बात करोगे ना, तो उसमें से कोई ना कोई आइडिया पोजेस जरूर करता है जिसको लगता है कि मुझे जो ना स्टार्टअप करना है, कुछ ना कुछ है मेरे दिमाग में। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे, करना तो है, आई एम सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। मीन ये वायरस इतना मतलब फैल गया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीबॉडी वाज क्रेजी अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, एक पत्थर उठाओ तो 4 इंजीनियर मिलेंगे इसके पीछे, है ना, वो वाली सिचुएशन। देन केम द टाइम ऑफ MBA, 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 MBA. Believe me, this decade and coming decade, entrepreneurs, छोटा बड़ा किसी भी तरह का, क्योंकि आप एक चीज़ सोचो, जितने हम यूथ, जितनी यंग पॉपुलेशन हमारे देश में है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। तो आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको, एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर देखे आपने? हर तीसरा आदमी यूट्यूबर है। अर्निंग है नहीं है, दैट इज सेपरेट स्टोरी।
लेकिन हर किसी का चैनल है, हर कोई ब्लॉग करना चाहता है, हर कोई किसी ना किसी से, ये हवा में है। यही वाला हाल जो है ना, एक टाइम आएगा जब ये भी ना पूरा आ गया। वैसे टाइम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का जो ना वो डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ उन्होंने अपने आप को बढ़ा लिया, कुछ और नया ट्राई कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई चीज़ें जो ना बदलती हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं, चीज़ों के साथ मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए कीप योर सेंसेस ऑन, आंख नाक कान हर तरफ खुला रखो, बी ऑब्जर्वेंट। सोसाइटी में जब भी जाते हो, आसपास कहीं भी देखते हो, ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसा क्या है जिसमें कुछ फ्लॉज हैं, जिसको आप ठीक कर सकते हो, आप एक बड़ा बिजनेस उससे बना सकते हो। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू वांट टू फाइंड अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, just try to understand, just try to observe what is good in the market and how you can make that better. किसी भी चीज़ को, जो अच्छी चीज़ चल रही है ना, उसमें थोड़ा ऐसा क्या फ्लेवर जोड़ दूं कि वो उससे थोड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि लोग पहले से जानते हैं बेटर वर्जन आएगा तो लोग उसको खरीदेंगे, लोग उसको लेंगे। अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। समय कितना हुआ? 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों को मेरे से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अगला टॉपिक जो मैं शुरू करने वाला हूं वो है कैंपस इकोसिस्टम। तो 5 मिनट में बात करने वाला है नहीं। आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया है कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेटर, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोसिस्टम आपको सपोर्ट कर सकता है, उस पर बात करूंगा अगली क्लास में। अभी आप लोग मेरे से 5-10 मिनट, जो भी अगर आपको डाउट हो, सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। कान में आके पूछोगे? बंद कर दो उसको।